Hello everyone, now again welcome to video lecture class. Today I am going to talk about the first class of the physical science. मैं आज आपसे फिजिकल साइंस के जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ. Physical science, that means as you know that one of the most important subject of the secondary classes. As you know that physical science, it is the branch of science. आप सभी जानते हैं फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान सेकेंडरी क्लासेस का एक महत्वपूर्ण विषय है. साथ ही साथ यह विज्ञान की एक शाखा है. विज्ञान को मुख्यतः हम लोग भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के रूप में जानते हैं. जब कभी भी भौतिक विज्ञान की बात करते हैं तो एक ऐसा आधार जहाँ पर कि भौतिक विज्ञान की उपयोगिता सभी जगह, दैट मीन्स यूजेज ऑफ फिजिकल साइंस इन ईच एंड एवरी प्लेसेस, इन द क्लासरूम, इन आउटसाइड द classroom. That means it is the most important and vital subject related to the individual. As you know that physical science, that means the materials related to physical science always you have to use in the everyday life. That means यह मनुष्य के लिए भी, इससे संबंधित जो वस्तुएं हैं वह मनुष्य के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं. फिजिकल साइंस के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की डिस्कवरी है, एक खोज है, एक अनुसंधान भी है. तो ये बहुत सारी बातें जो कि फिजिकल साइंस की से जुड़ी हुई हैं और उसके महत्व के बारे में जानना समझना एक शिक्षक के लिए अति आवश्यक है. आप जो अभी सेवा पूर्व यानी प्री सर्विस टीचर के रूप में ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको भी ये जानना समझना अति आवश्यक है. तो अब मैं आपको फिजिकल साइंस में खासकर साइंस से रिलेटेड उसके जो परिचय है यानी साइंस एक्चुअल में क्या है, साथ ही साथ जो सिलेबस के अनुसार है नेचर ऑफ साइंस, उसके बारे में भी बताने जा रहा हूँ. नाउ अगेन वेलकम टू वीडियो लेक्चर क्लास B.Ed सेमेस्टर 2 पेपर नंबर 7 फिजिकल साइंस. फर्स्ट, pedagogy of physical science. As you know that the particular contents related to your syllabus, unit 1, nature of science. Now physical science, first introduction. What is the meaning of physical science? After that I will clarify nature of science. As you know that humans are curious by nature. This curiosity has driven them since time to explore the world around them. Over time, manipulation and controlling nature for the benefit of humans has become an objective of exploration. Next point. Initially, the pace of exploration was slow, but with the availability of better tools of exploration in the last few hundred years, and also as a result of industrial revolution in the West, the pace of exploration has increased many-fold. Now, next point. Unfortunately, the industrial revolution introduced an undesirable element into the exploration of nature. Next point, exploration become a tool for not only modifying and controlling nature for the benefit of all, but also for controlling natural resources for the benefit of a select few. Now the last point of the introductory part, humans exploratory activities have resulted into the accumulation of a vast source of knowledge called natural science. Last point, in natural science we study about natures, which means the entire universe. Now, nature of science, that is physical science, as your syllabus related to. Number 1, science as domain of inquiry. Number 2, science is a particular way of looking at nature. Number 3, science is a rapidly expanding body of knowledge. Number 4, science is an interdisciplinary area of learning. Number 5,
Science is a truly international enterprise. Now, number 6, science is always tentative. A. Tentative nature of scientific theories. Number 7, science promotes skepticism. Scientists are highly skeptic people. Number 8, science demands perseverance from its practitioners. Number 9, science as an approach to investigation. And number 10, process of constructing knowledge. नाउ अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में बता दूं, परिचय और विज्ञान की प्रकृति के बारे में। सर्वप्रथम जो भौतिक विज्ञान है उसके परिचय क्या है थोड़ा मैं बता दूं, उससे पहले स्पष्ट करूं। मनुष्य स्वभाव से जिज्ञासु होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य स्वभाव से जिज्ञासु होता है और इस जिज्ञासा ने उसे या उन्हें उनके आसपास की दुनिया को पता लगाने के लिए प्रेरित किया। अधिक समय तक मनुष्य के लाभ के लिए अधिक समय तक मनुष्यों ने अपने लाभ के लिए प्रकृति में परिवर्तन किया, साथ ही साथ नियंत्रण और अन्वेषण का एक उद्देश्य भी बनाया। प्रारंभ में अन्वेषण यानी खोज की गति धीमी थी। सेकेंड पॉइंट में उपलब्धता के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से अन्वेषण यानी खोज के बेहतर उपकरण और पश्चिमी सभ्यता के आधार पर औद्योगिक क्रांति के कारण भी उसके जो अन्वेषण यानी खोज थे उसमें परिवर्तन हुए और जो क्रांति के कारण जो अन्वेषण यानी खोज की जो गति थी वह बढ़ गया। परंतु दुर्भाग्यवश नेक्स्ट पॉइंट में परंतु दुर्भाग्यवश औद्योगिक क्रांति की शुरुआत तो हुई, लेकिन प्रकृति के साथ जो कुछ भी कार्य किए गए खोज के आधार पर उससे प्रकृति को कहीं न कहीं नुकसान हुआ और अन्वेषण न केवल संशोधन यानी खोज में न केवल संशोधन बल्कि प्रकृति को नियमित करने के लिए एक उपकरण के रूप में काम किया जाने लगा, जिससे कि कुछ लाभ भी हुआ और कुछ हानि भी हुई। साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रण करने के लिए भी या प्राकृतिक संसाधनों का सही तरह से कैसे उपयोग किया जाए उसमें भी समस्याएं धीरे धीरे आने लगी। ओवरऑल यानी सामान्यतः अंत में ये बात कहा जा सकता है कि मनुष्य की खोजपूर्ण गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ज्ञान का स्रोत तो बढ़ा और ज्ञान के आधार पर उसका उपयोग भी किया जाने लगा, जिसे हम प्राकृतिक विज्ञान के रूप में कहते हैं। लेकिन प्राकृतिक विज्ञान का समुचित प्रयोग फायदेमंद है, लाभकारी है, लेकिन उसका दुरुपयोग कहीं न कहीं नुकसान भी पहुंचाता है। अतः अंत में प्राकृतिक विज्ञान में हम प्रकृति के बारे में अध्ययन तो करते ही हैं, साथ ही साथ संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में भी अध्ययन करते हैं। अब विज्ञान की प्रकृति के बारे में थोड़ा जान लें। विज्ञान जांच के एक क्षेत्र के रूप में है। विज्ञान प्रकृति को देखने का एक विशेष तरीका है। विज्ञान ज्ञान का तेजी से विस्तार करने वाला निकाय है। नंबर 4, विज्ञान सीखने का एक अंतः विषय क्षेत्र है। नंबर 5, विज्ञान वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय उद्यम है। नंबर 6, विज्ञान हमेशा अस्थायी है। इसमें ए नंबर वैज्ञानिक सिद्धांतों की तंबू प्रकृति, यानी हम इसे ये चीज़ इंडिकेट कर सकते हैं कि विज्ञान का जो आधार है जिसमें कि एक हमेशा के लिए फिक्स नहीं होता है, तो उसके साथ जो प्रकृति है वह सदैव खड़ा रहती है, जिसमें कि आप काम कर सकते हैं फिर उसे परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए तंबू यानी तंबू गाड़ दिया गया, फिर काम होता है उसे हटा लिया जाता है। नंबर 7, विज्ञान संशयवाद को बढ़ावा देता है। अपितु संशयवादी लोग वैज्ञानिक
अत्यधिक हैं। नंबर 8, विज्ञान अपने चिकित्सकों से दृढ़ता की मांग करता है। नंबर 9, एक दृष्टिकोण के रूप में विज्ञान। नंबर 10, एक ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया के रूप में भी है विज्ञान। तो इस प्रकार से इसकी जो इंट्रोडक्शन था और प्रकृति के जो पॉइंट थे, नेचर थे, उसको मैंने बताया। अगले क्लास में प्रकृति के बारे में एक एक पॉइंट को चर्चा करूँगा मैं। तो आपने अभी देखा कि मैंने विज्ञान के एक परिचय के बारे में दिया कि विज्ञान एक्चुअल में क्या है, मनुष्य कैसे क्रांति के आधार पर जैसे जैसे विज्ञान में क्रांति होती गई है वैसे उससे उसकी चीज़ों को उपयोगिता के रूप में ला रहा है, लेकिन अत्यधिक उपयोग कभी हमेशा नुकसानदायक होता है। अगर लिमिट मात्रा में अगर उपयोग किया जाए, विज्ञान की जो इन्वेंशन यानी खोज हुई है उसकी अगर मात्रा समुचित मात्रा में उपयोग किया जाए तो वह फायदेमंद हो सकता है। यानी कह सकते हैं कि विज्ञान वरदान भी है, एक अभिशाप भी है। तो इसकी साथ ही साथ इसकी प्रकृति के बारे में कुछ पॉइंट मैंने बताया है। अगले क्लास में इसके एक एक जो नेचर है यानी प्रकृति है, नेचर ऑफ साइंस, उसके बारे में भी मैं अगले क्लास में बात करूँगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ। लास्ट में, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे वीडियो फिजिकल साइंस का अपलोड होगा आपको इमीडिएटली प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।